Welcome back to Career Goals. How are you all, students? Let's start the marriage and family topic. ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 2.3 का है। 2.2 का भी हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड 2.1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये टॉपिक जो है मैरिज, ये हमारी एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2। ओके गाइस, any issue, any doubts? चलिए let's start marriage and family. Marriage and nature and the definition of the marriage. Humankind most basic and oldest social unit is the family. It is a social institution primarily established by the society to ensure the continuity and regulate the sexual behavior of the member. Family is the primary group where did the child is initially socialized and initiate the in the way of life of this group. The family provides the child social, physiological and emotional needs, worth, intimacy, affection, love, care and security. मैरिज क्या है? मैरिज भी एक अलग तरीका ह्यूमन वो है जो इंश्योर करता है इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली एंड इवेंचुअली of the human species. The new family code of election which become effectively on August is a 3rd 1998 defined marriage as a special contract of the permanent union between a man and woman. Man and woman के बीच में एक permanent contract है enter into the accordance with the law for the establishment of family life. ठीक है, ये लाइट एंड केलर ने 1885 में डिस्क्राइब की थी कुछ डेफिनेशन। उन्होंने कहा मैरिज इज ए सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन द टू और मोर इंडिविजुअल दैट टिपिकली इन्वॉल्व इन सेक्सुअली एंड इकोनॉमिकल राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, फर्दर कुछ और व्यूज है मैरिज को लेके। मैरिज एक बिजनेस पार्टनरशिप है एज मच एज ए रोमांटिक फेरी टेल। इट इन्वॉल्व्स compromise, division of the labor, specialization, financial arrangement and communication system। ठीक है, ये कुछ कुछ डेफिनेशन है, हर सब ने अपनी अपनी अलग अलग टाइप की डेफिनेशन दी है। एस्पेक्ट्स ऑफ द मैरिज, फर्स्ट द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सेकंड ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, एक तो लीगल और दूसरा रिलीजियस। व्हाट गॉड हैज पुट टुगेदर लेट नो मैन पुट। The meaning of marriage and the family issue. The most traditional social norm view marriage as a scared phenomena, that is, the family and the marriage are divine and holy institution created and maintained by the God and supreme being greater than the human being. ये ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स है और नॉन ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स है। ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स में लीगल मैरिड, नॉन ट्रेडिशनल में singlehood, never married, non-marital collaboration. Traditional family norms, married ones, remarriage and multiple marriage, non-traditional. Traditional marriage norm, heterosexual marriage, same-sex marriage. ट्रेडिशनल मैरिज नॉर्म्स, तो ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स है। टू अडल्ट हाउस होल्ड, नॉन ट्रेडिशनल में इज अ मल्टी अडल्ट हाउस होल्ड, कॉमन लिविंग। ठीक है, ट्रेडिशनल फैमिली ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स में चिल्ड्रन और नॉन ट्रेडिशनल में वॉलेंट्री होते हैं चिल्ड्रन। ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स में टू पेरेंट्स लिव टुगेदर और नॉन ट्रेडिशनल में सिंगल पेरेंट, जॉइंट कस्टडी, स्टेप थ्री फैमिली, थ्री प्लस पेरेंट्स। ओके, parent as a key of source is a key source of the education, religion, protection, recreation। और नॉन में स्कूल, चर्चेज, गवर्नमेंट, पुलिस, क्लब एंड प्रोफेशनल स्कूल्स। until death, until divorce or the separation. Male as a provider, female as a provider, dual career marriages. Male as a head of or authority, female is the head. Self-supporting and independent. Welfare and social security। ठीक है, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, सेक्सुअल ओपन मैरिजेस, इंटीमेट फ्रेंडशिप। ठीक है,
ये सब चीजें किस में थी आपका ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स एंड नॉन ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स के डिफरेंसेस थे। सेकंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स क्या है? View the meaning of marriages and family is a centrally primary on the social. The third is the meaning of marriage suggests that the families and marital relationship exist for the individual. क्या क्या important legal matters हैं for a marriage? Family code of provide is a number no marriage shall be valid unless the essential requests are present. Legal capacity of contracting parties 18 plus or upward who must be as a male and female. Freely given in the presence of officer. ठीक है. Formal request is क्या है for marriages? Authority of the officer. A valid marriage license fits in the case provided in the chapter 2 of the title. A marriage ceremony which takes place with the appearance of the contracting party before the officer and the personal declaration that should take each other as a husband and wife in the presence or not less than the two witnesses of legal age. ठीक है. आर्टिकल 4 में क्या है? The absence of any essential of the formal request shall be read for the marriage. ठीक है. Refer for the legal process of filling a appointment code, seeking a judicial declaration of making a marriage null and void in the form of beginning or no marriage was takes place. ये सारे आर्टिकल्स हैं या ये सारे आप लॉ बोल सकते हैं. लॉ ऑफ मैरिज. Whoever of the contracting parties is 18 plus age all over but for below 21 without parent. Another party was an unsound mind. Consent of another party is obtained by the fraud, force. ठीक है. Another party has a physically capable that marriage will be other. Either party was with the sexually transmissible diseases found to serious and incurable. लीगल सेपरेशन क्या चीजें होती हैं? ये सब लीगल सेपरेशन है. कितने टाइप की फॉर्म ऑफ मैरिजेस हैं? पॉली है, मोनोगैमी है. ठीक है. बेसिस ऑन चूजिंग ए मैरिज पार्टनर, पेरेंटल सिलेक्शन जिसे हम अरेंज मैरिज भी बोलते हैं, या रोमांटिक लव. ठीक है. उसके बाद डेफिनेशन एंड नेचर है फैमिली के ऊपर, वो हम लोग समझेंगे पूरा पैटर्न कैसे न्यूक्लियर फैमिली है, कंबाइंड ओरिएंटेशन है, किस टाइप की एक्सटेंडेड फैमिली है. फिर फैमिली प्लानिंग. ये सारी चीजें आएंगी आपकी. ठीक है. यहाँ पे आके ये चैप्टर जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, तो आपका मैरिज चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा. आई नो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जा रहा है बट स्टिल प्रॉब्लम ये है कि इन सब चीजों में कुछ इतना है ही नहीं. अब आप लीगल मैरिज या लीगल सेपरेशन या मैरिजेस के बारे में कितना पढ़ सकते हो, और मैं आपको कितना थ्योरेटिक चीजें पढ़ा सकती हूँ. वो गिनी चुनी चीजें हैं इनमें सब में. ठीक है. Sorry guys, so tired right now. चलिए लीगल सेपरेशन पे आते हैं. यहाँ तक तो हमने शादी के लॉ ऑफ मैरिजेस, असेंशियल रिक्वेस्टेड, ठीक है, ये सब कर लिया. अब आते हैं हम मेन चीज पे कि सेपरेशन क्या है, लीगल सेपरेशन क्या है. refers to the legal process for the separation, process of filling a
appointment court seeking a judicial declaration of legal separation for the married couple. ये आर्टिकल 55 है. Repeated physical violence, ठीक है, abusive conduct indirectly, physical violence or moral pressure to complete the, ये सारी चीजें होती है. Attempt to respond to, ठीक है. उसके बाद कॉमन चाइल्ड चाइल्ड पार्टनरशिप, ये सारी चीजें जो आती है सेपरेशन है. फाइनली एडजस्टमेंट स्टेटमेंट द रिस्पॉन्ड टू more than the 6 year even this drug addiction, habitual alcoholism, ठीक है, homosexuality of the respond. उसके बाद है सेक्सुअल अटेम्प्ट बाय द रिस्पॉन्ड सजेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द ये, मतलब ये सारी नॉर्मल जो फैमिलीज इश्यूज होते हैं विदाउट जस्टेबल कॉज फॉर मोर देन द 1 year, ये सारी चीजें मेन इसके अंदर आती हैं. फिर नॉर्म्स ऑफ द मैरिज ऑन द सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल मैरिज पार्टनर, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, ठीक है, ये 4 पार्ट हैं. एंडोगेमी इज द रूल दैट रिक्वायर ए पर्सन टू मैरी समवन फ्रॉम विद इन हिज और हर ओन ग्रुप, जैसे ट्राइब्स हो गया, नेशनैलिटी हो गया, जन हो गया, रेस हो गया, कम्युनिटी हो गया, या अदर कोई सोशल ग्रुप्स हो गए. एक्सोगेमी एक रूल है दैट रिक्वायर ए पर्सन टू मैरी समवन फ्रॉम आउटसाइड हिज हर ओन ग्रुप, जो उनका अपना खुद का ग्रुप है उससे अलग अगर आप लोग मैरिज क्रिएट करते हो, मैरिज करते हो, देन उसको एक्सोगेमी बोलते हैं. Sororate is a decisive widow marry the sister or the nearest kin of the deceased family wife, ठीक है. The widow marry the brother nearest kin of the deceased husband, ठीक है. वाइफ की डेथ होने के बाद उसकी सिस्टर या उसकी किसी फैमिली मेंबर के थ्रू आपने मैरिज कर ली, या फिर अगर आपके हस्बैंड की डेथ होने के बाद देन यू शुड डू एनीथिंग, तो वो उस चीज को हम ये बोलते हैं. फॉर्म ऑफ द मैरिज इज द मोनोगैमी, पॉलीगैमी, ठीक है. मोनोगैमी मैरिज बिटवीन द वन मैन एंड वन वुमेन, एक मैन एंड वुमेन के बीच की मैरिज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड मोनोगैमी. उसके बाद पॉलीगैमी अदर 3 टाइप्स में आती है. पॉली एंड्री एंड ग्रुप मैरिज, वन हस्बैंड एंड टू और मोर वाइफ, वन वाइफ एंड टू और मोर हस्बैंड, एंड ग्रुप मैरिजेस टू और मोर हस्बैंड एंड टू और मोर वाइफ. ओ माय गॉड, ये सारी सिचुएशंस तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी की लाइफ में किसी की मैरिजेस में आती होंगी, बट स्टिल अगर आपके सिलेबस में और ये ऐसी चीजें होती हैं तो ऑब्वियसली आपको पढ़नी पड़ेगी. पॉली एंड्री एंड ग्रुप. पॉली वन हस्बैंड टू वाइफ, इट्स ओके. एंड्री पॉलीएंड्री वन वाइफ टू मोर हस्बैंड, and group marriage is two or more husband and two or more wife. Okay. Basis of the choosing a marriage partner, एक चीज होती है पेरेंट सिलेक्शन जिसको हम लोग अरेंज मैरिज बोलते हैं. दस इज सेकंड इज लव मैरिज, इसको मैंने रोमांटिक लव भी यहाँ पे मेंशन किया है. तो सेकंड वन इज लव मैरिज. Arranged marriage family that is important stuck in the type of spouse their son or a daughter take usually practice. उन्हें अपनी बेटा एंड बेटी के लिए मतलब हस्बैंड या उनके लिए एक पार्टनर सर्च करते हैं. रोमांटिक लव बिकम द इम्पोर्टेंट बेसिस फॉर द मैरिज इन अवर सोसाइटी. उसका थीम, इट इज द थीम ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग्स, द सब्जेक्ट ऑफ मैनी ऑफ मूवीज एंड टेलीविजन शोज, नॉट एक्टिव इन द स्कोर ऑफ पॉपुलर बुक्स एंड मैगजीन आर्टिकल्स. ठीक है, बहुत ही वो चीज है. वाई पीपल मैरी फॉर द लव, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, पेरेंट विशेज, escape from the loneliness, common interest, parenthood, physical attraction, martial wishes and happiness, compatibility, unhappy and home situation, marry, companionship, protection, adventure, sex and sexual attraction,
rearing of the children, acceptance, responsibility, death of the former spouses and care and happiness. इन सब चीजें के लिए लोग जो है वो मैरिज करते हैं एंड इट्स जेन्युइन और आई थिंक 100% राइट. ठीक है. द डेफिनेशन एंड द नेचर ऑफ द फैमिली एंड स्टार्टेड द फैमिली पोर्शन. The family is a basic social institution and the primary group in the society. पहले बर्गस ने 1966 में डिफाइन किया था. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड विद द टाई ऑफ द मैरिज ब्लड के लिए अडॉप्शन के लिए सिंगल हाउस होल्ड अट्रैक्टिंग कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इधर इन द रिस्पेक्टिव सोशल रोल ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ मदर एंड फादर सन एंड डॉटर ब्रदर एंड सिस्टर क्रिएटिंग ए कॉमन कल्चर. ठीक है. ये चीज दी थी 1961 ने. लाइट ने 1985 में डिफाइन किया फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर united by a tie of the marriage. ठीक है. who are recognized by the community. आपको community और सबके बारे में पता है. constituting a single household and having the responsibility for the rearing children. ठीक है. 1949 में मर्डक ने कहा family as a social group characterized by the common residence, economical operation and reproduction. ये सारी चीजें थी फैमिलीज के ऊपर जो भी थ्योरीज दी गई हैं उसके बारे में. अब आते हैं द थ्योरीज ऑफ द फैमिली. थ्योरीज फॉर रिस्पेक्टिवली ऑन द फैमिली. तीन थ्योरी है. एक तो फंक्शनल, एक कॉन्फ्लिक्ट एंड तीसरी इज द सिंबॉलिक इंटरेक्शन. ठीक है. तीन थ्योरी दी हैं. फंक्शनलिस्ट में क्या है? से द सोसाइटी इज टू सर्वाइव एंड मेंटेन इटसेल्फ अक्रॉस द टाइम. सर्टेन एसेंशियल फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म. ठीक है. फंक्शन में आप रेगुलेशन एंड सेक्सुअल बिहेवियर, reproduction, biological maintenance, socialization, care and protection, function, social placement and group status and social control. ये सारी चीजें आती है. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट में एग्री विद द फंक्शनलिस्ट उन सबसे चीजें एग्री करता है उन पोजिशन देन द फैमिली इंस्टीट्यूशन एंड अदर ग्रुप इन सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ स्पीशीज सर्वाइवल. द symbolic में क्या है? The symbolic direct consider to attention to the symbolic environment in which people carry out their daily activities. ठीक है. ये सारी चीजें आती हैं आपके फैमिलीज में. कोई इश्यूज आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करें फिर. पैटर्न ऑफ द फैमिली ऑर्गेनाइजेशन. एक तो न्यूक्लियर टाइप फैमिली होती है. फैमिली फ्रॉम द ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन एंड एक्सटेंडेड फैमिली. ठीक है. तो जो फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है उसमें क्या होता है? हस्बैंड एंड वाइफ वो ही रहते हैं. They are composed of husband and his wife and their children. Is a union recognized by the other member of the society. The family of orientation is a family into the person is born where he is a reared and socialized. The family of procreation is a family as such person established through the marriage and consists of the husband, wife, son and the daughter. ठीक है. Extended family is a two or more nuclear family economically and socially related to each other. दो टाइप की फैमिली होती है. Conjugal family is correspondence to the nuclear family where priority is given to the marital tie. Corresponding to extended family where priority to give to the blood tie. ठीक है. Based of the descent, bilateral. ठीक है. पेट्रीलाइनल एंड मेट्रिलाइनल. ये कुछ चीजें हैं. Implies the family tie a person with a particular group of kinfolk. ठीक है. एक सेकेंड गाइस मैं चेक की कैमरा के है ना. बाइलेटरल्स इन्वॉल्व द डिसेंट थ्रू द बोथ द मदर एंड फादर की फैमिली से. ठीक है. पेट्रीलिनियर में इन्वॉल्व द डिसेंट थ्रू द ओनली द फादर फैमिली. इसमें भी मदर फैमिली. ठीक है.
आप खुद समझ सकते हैं पेट आर अ वर्ड पैट मीन्स पेरेंटल पेरेंट फादर की साइड से मैट मतलब मदर की साइड से एंड देन सिंस बाई मदर फादर दोनों की साइड से ठीक है बेस ऑन द रेजिडेंस ठीक है पेट्रीलोकल द मैरिड कपल लिव विद और नियर द हस्बैंड फैमिली matrilocal the husband lives his family set or set as housekeeping with near his wife family ठीक है neolocal the married couple establish a new home their residence independently of the parent of either groom or the bride best option bilocal it gives the couple choice to staying with a groom parent or the ब्राइड पेरेंट ये इसमें बाय लोकल में कपल की अपनी खुद की चॉइस है या तो वो ग्रूम के पेरेंट मतलब दूल्हे के घर पे रहे दूल्हे के पेरेंट्स के साथ रहे या ब्राइड के पेरेंट्स के साथ रहे वो उनका एक अपना अलग लुक आफ्टर है कि वो किसके साथ रहना प्रेफर करते हैं लियो लोकल में क्या है कि जो मैरिड कपल है उन्होंने एक अपना एस्टेब्लिश कर लिया एक न्यू होम और ना तो वो अपने ग्रूम पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना ब्राइड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करते हैं उनका एक इंडिपेंडेंटली रेजिडेंस है ठीक है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड पॉपुलेशन एजुकेशन सेक्स एजुकेशन ठीक है ये सारी चीजें जो है इसमें आएंगे family planning is expert define the family planning is a process by which a responsible and mature couple is wish to determine by themselves to timing the proper scanning and number of children born them फैमिली प्लानिंग इन्वॉल्व द तीन मेन चीजें होती है एक तो रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एक प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड बर्थ कंट्रोल फैमिली प्लानिंग द इन्वॉल्व द रेशनल utilization of effective method by the married couples so space limited for their children to desirable size in the order to attain the quality life this was means the prevention of the unwanted pregnancy, which is responsible from the parenthood, means responsible for the procreation and socialization of the children. ठीक है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेरेंट्स के लिए मैरिड कपल आर टू प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने चाइल्ड की टेक केयर कर सकें एंड हु इज प्रॉपरली फीड क्लोथिंग एंड एजुकेट उन वो इतने प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल हो कि वो अपने जो उनका चाइल्ड है उसकी प्रॉपरली उसको फीड कर सके मतलब उसको प्रॉपर ग्रोथ कर सके उनके लिए कपड़े पढ़ाई लिखाई उस चीज के लिए वो भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ठीक है नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग कंप्लीट की नेक्स्ट इज नॉर्म्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग ठीक है मेडिकल नॉर्म सोशल नॉर्म्स थर्ड इज लीगल थ्री टाइप्स के नॉर्म्स होते हैं हमारी फैमिली प्लानिंग के लिए फैमिली प्लानिंग इज अ प्रोसेस where through the interaction married couple arrive at an intelligent decision in the number of children they could provide with a quality life. Medical norm unwanted pregnancy contraceptive work to prevent the meeting of the egg and sperm ठीक है it help to prevent the unwanted birth reducing the length of the exposure of the pregnancy and reduce the birth rate ठीक है ये larger population. Legal norms to achieve the maintain the population level most conducive to the national welfare. The labor code of this requires the employer to more than the 200 workers to provide the family planning survive for their employer and profit. Physiological norms में family planning is a physiological based problem which confront the young today brought about your development stage and sexual revolution in the present time. ठीक है ये पॉलिसीज हैं पॉपुलेशन एंड प्रोग्राम्स की पॉपुलेशन एजुकेशन एक प्रोसेस है जैसे अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉपुलेशन सिचुएशन एज वेल एज रेशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स दिस सिचुएशन and high quality of life for the individual, the family, and the community, and the national and the world. बर्थ कंट्रोल की अपनी बहुत सारी टेक्निक्स हैं बहुत सारे मेथड्स हैं वो आपके मेंशन नहीं है इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको
सच इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अगर तो भी आप लोगों में से किसी को वो हो कि हाँ हमें पढ़ना है तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। Family planning is a process by which responsible couple determine by themselves the timing, proper spacing, and number of children born. ठीक है, ये सब चीजें इसमें मेन है। ठीक है, इसके साथ मैंने एक पीपीटी और बनाई है आप लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड। वेरी नाइस, उसमें बहुत चीजें मैंने आपको डाली हैं। इसमें तो मैंने लिटिल बिट आपके लिए फैमिली भी किया था, क्योंकि फैमिली भी उतनी जरूरी थी इस मैरिज के टॉपिक पे। इसमें आपको प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ मैरिज। मैरिज क्या है? वन ऑफ द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सेक्स लाइफ ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, डेफिनेशन में मैरिज इज ए रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन द मेट्स। Marriage is a physical, legal, and moral union between the man and woman in complete united life for establishment of the family. ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है? मैरिज इज ए यूनिवर्सल, मैरिज इज ए परमानेंट बॉन्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। मैरिज इज यूनिवर्सल क्यों? द सोशल इंस्टीट्यूशनल इज ए फाउंड ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटी at the all stage of development. Marriage is a permanent bond between the husband and wife. Marriage is a specific relationship between the two individuals of the opposite sex based on the mutual rights, and marriage requires social approval. The relationship between man and woman must be required social approval, without which marriage is not a valid. Okay. Oh, sorry. उसके बाद मैरिज स्टैब्लिश द फैमिली। फैमिली क्या हेल्प करती है? फैमिली पूरी हेल्प करती है फॉर द मैरिज। मैरिज क्रिएट द म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, मैरिज इज ऑलवेज एसोसिएट विद सम रिलीजियस सेरेमनीज। ठीक है, मैरिज रेगुलेट द सेक्स रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब कस्टम एंड लॉ। मैरिज हैज द सर्टेन सिंबल्स लाइक ए रिंग, special clause, special signs before the house, etc. Functions of marriage में regulation of sex life, marriage led to establishment of the family, provide economical cooperation, marriage contribute to emotional and intellectual of the partner. ठीक है, marriage are the two aspects, legal and regional. Legal is on the marriage the contract. ठीक है, टाइप ऑफ मैरिज मैंने आपको बता दिया। मोनोगामी मीन्स वन मैरिज, मैरिज बिटवीन द वन मैन एंड वन वुमेन। Polygamy refers to the marriage between the one mate, marriage of more than one mate at the given time. इसके भी तीन फॉर्म है जो मैंने तीनों आपको समझा दिए। Changing traits in the marriages, change in the aim of the marriage, change in the process of the mate selection। आपका जो भी आप हस्बैंड एंड वाइफ जो भी सिलेक्शन है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। चेंज इन द रूल ऑफ एंडोगैमी एंड एल्डोगैमी, एज ऑफ द मैरिज चेंज हो चुके हैं, राइट्स जो है मैरिज के वो चेंज हो चुके हैं, स्टेबिलिटी जो है मैरिज की वो चेंज हो गया है, द प्रॉब्लम ऑफ री मैरिज, डोरी सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है, मैरिज एंड मोरालिटी चेंज हो गया। प्रॉब्लम क्या क्या आती है? फर्स्ट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, लॉ, डिवोर्स, डाउरी, फैमिली, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरस्टेट मैरिज एंड इंटरकनेक्ट मैरिज। Understanding problem. After the marriage, we see the understanding problem between the husband and wife. If both to fail to understand each other, it creates a problem. अगर वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं देन क्या स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैज बीन स्पेशली इन द अरेंज मैरिज। इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अरेंज मैरिज में आती है। इफ द हस्बैंड इफ डिड नॉट हैव इंटरेक्ट विद ईच अदर बिफोर द मैरिज। Law, earlier as if after the marriage, woman is not having freedom like working out, going out, education. She has a restricted. ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होती है। डिवोर्स होता है। डिवोर्स इज ए और द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज इज ए टर्मिनेशन ए मैरिटल यूनियन। कैंसिलेशन है आपकी मैरिज का, आपकी ड्यूटीज का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। द डिजोल्विंग द बॉन्ड ऑफ द, आपकी जो भी मैरिज का बॉन्ड है वो डिजोल्व होता है, वो खराब होता है, वो सब चीजें।
Dowry है given and taking, helping in given and taking, advertising for dowries. Family, any conflict that occur within the family between the husband and wife, parents and children, between siblings or the extended families. Intercaste marriages terms is used in Asian and the Middle Eastern country for the marriage when the couple are from the two social group, different race and caste. It's related to the exogamy. ठीक है. Interstate marriage between the two state male and female. फोटो मैंने आपको बहुत सही आगे दिया. Inter-country marriage between two country male and female. Marriage is not an important step or a condition of the human life, but in the Western countries, influence of the marriage is decreasing because it is practice control the sexual life of human beings, establish the family. बाकी सारी चीजें तो वही हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ. अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं. बट मैरिज टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता. हाँ, लिटरली अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बिलो एंड प्लीज गाइज रिक्वेस्ट यू कि प्लीज मेरी वीडियोस को भी लाइक करें. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. कल का टॉपिक हम कुछ और लेंगे एंड कल का टॉपिक होगा आई थिंक, कल का टॉपिक है फैमिली, जो मैंने अभी पूरा कंप्लीट नहीं करवाया है. छोटा चीजें मैंने पढ़ा दी है. डेफिनेशन इन हाउस होल्ड डोमेस्टिक ग्रुप. अभी फैमिली आपको पूरा कंप्लीट कराना है और मैरिज तो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है. इन दोनों साइड से मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको. अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है मैरिज के अंदर. ठीक है. मैरिज पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपने गलत किया, योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम. ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं. कल मिलेंगे फैमिली टॉपिक के साथ. आई होप मैंने फैमिली टॉपिक भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया है. थोड़ा नहीं, बहुत सा एक्सप्लेन कर दिया. बट फैमिली कंट्रोल और ये सब चीजें आपके उसमें है नहीं, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है फॉर ये जनरल नॉलेज. किसी को लास्ट की स्लाइड्स का पढ़ने का बहुत शौक हो तो आप वो भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलिए आपके लिए आज की क्लास यहीं पे मैं खत्म करती हूँ. कल आएंगे एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर, एक नए उसके साथ. कल का टॉपिक होगा फैमिली. आई होप आप लोगों को गाइस समझ में आ रहा होगा. मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आए चीजें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज गाइस आप कमेंट कर सकते हैं. मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी. और अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपको कमेंट पे नहीं समझा पाऊंगी तो देन मैं आपको जरूर व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे भी मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करके समझाऊंगी. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर इन दिस क्लास. थैंक यू सो मच गाइस.